be comfortable and speak from your mind. That's all. Ma'am, first of all, you are looking lovely. Thank you so much. So, what do you like to say about today's event? I actually am very hurried. I've just landed from Delhi and quickly got ready and come. So I'm actually wanting to go inside and see who all are receiving the awards, and I'm going to cheer and clap for them. So, are you judging the contestant today? No, I'm not judging anybody, and I'm very glad. It's a very nerve-wracking job to judge, but I'm just glad I could be a part of this evening. It was nice for them to have called me today. If you'd like to give any tips to the contestant, what would you do? Just be confident and speak your mind. Have your individualism. So that's all. मौनी, इसके अलावा 2 फिल्में आप करने वाली हैं, दबंग 3 और गोल्ड, तो क्या कहना चाहेंगे? No, this is you are telling me something like that. I don't know. I would only like to say that I finished shooting for Gold and it has been an amazing experience, and I'm looking forward to August 15th. Ma'am, we also Thank heard you. that you are part of Brahmastra. Is it true? We will cross that bridge. Pata shayad true hai, but that we will cross the bridge when we reach it. Okay. New Year is coming, so what's your New Year resolution? देखिए, ऐसा है कि मैं बहुत सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन कर तो लेती हूँ, बट आई एम नेवर एबल टू लाइक फुलफिल देम और कंप्लीट देम. बट if anything at all I would like to correct would be being a little less emotional. Yeah, that I would like to correct. Also, when यार सलमान खान का बर्थडे है, तो would you like to wish something? Why should I wish in front of you? अच्छा, परफेक्ट वुमन के डेफिनेशन क्या है आपके लिए? क्योंकि परफेक्ट अचीवर्स, Perfect woman to me is to be yourself, to be however she wants to be, however a woman like to be, to let them be independent, let them speak their mind, freedom of speech, freedom of freedom of being your individualistic self. मुझे नहीं लगता है कि God has made any of us to be ugly or to be too skinny, too fat or too intelligent, too dumb. जैसे भी हैं हम लोग सारे के सबके सब हम perfect हैं. तो acceptance अपने लिए and then that's it. आपको ज़रूरत नहीं है किसी और से acceptance seek करने के लिए. If you accept yourself, if you are happy with the person you are, then you're perfect. इस अवार्ड शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो मैम ने और सर ने ऑर्गेनाइज किया? इनसे पूछिए. मैम, क्या कहना चाहेंगे? मौनी आज यहाँ पर है, कितना एक्साइटेड है आप लोग? Of course, very much excited. बहुत ज़्यादा excited है. That's because of the talent what she's been giving it to the entire हिंदुस्तान को लिए, इंडिया के लिए, जो what she is doing for the television is a very big thing. So definitely we find her to be a perfect actress, of course, for television industry. So that's the reason she is here as a perfect lady for the evening today. Thank you. Yogesh sir. मैं तो आउटडोर पार्टनर और मेन स्पॉन्सर और बाकी सब गुरु भाई और खुशी जी के कमाल है. ये बोल के वो हट जाते हैं हर टाइम. इनको थोड़ा लंबा बोलना बोलिए. योगेश भाई और बोलिए, इसके बारे में बोलिए. दबंग 1, 2 जितनी भी मूवी है 100 में से 90 मूवीज़ का बॉलीवुड का काम मैंने किया है. मेरी मैडम की फिल्म भी मुझे मिले और सुपर डुपर हिट हुए, और सभी सुपरस्टार की फिल्म मैंने की है पहले, तो मैडम का भी मेरे हाथ लग रहेगा. Ma'am, one New Year wish. New Year. A very, very, very happy and prosperous New Year to all of you. May you all live well and live happy. May God bless you all with a lot in abundance. Thank you. Happy New Year. Thank you. और पेजेंट भी होने वाला है यहाँ पर, कितना एक्साइटेड है? I'm very excited about this thing because जो नई जनरेशन है उसके लिए I think ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है to come up and see कैसे जाएगा. So I'm looking forward to see everything. Wife. अभी ठीक है? तो अभी
this event is like all about for girls and all. So मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा opportunity है इन लड़कियों के लिए कि देखते हैं आगे क्या होता है. I'm pretty excited about it. परफेक्ट वुमन की डेफिनेशन क्या है आपके लिए? It's all about like how you present yourself, and perfect woman is for me is like mom. Okay. So every mom is perfect woman. So there are contestants, so you would like to give 2 tips to them. Just be you and just the way you are. Don't be so fake. Any upcoming project you would like to share with us? I'm doing something in South, so I can't right now I can't tell anything. So let's see, hope for the best. आर्टिस्ट के नाम तक आ रहा है. Keep silence. बस ले बस ले बाय. थैंक यू मैम. बस ना भाई. आज का जो पेजेंट है और अवार्ड है उसके बारे में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आई थिंक मुझे वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड मिल रहा है और मेरे लिए बहुत मायने रखता है. सो मैं यहाँ पर आई हूँ सबको एनकरेज करने के लिए और मेरे डैड के साथ एंजॉय करने के लिए. ओके. और परफेक्ट वुमन की डेफिनेशन क्या है आपके लिए? वुमेन ऑफ सब्सटेंस मेरे ख्याल से एक कॉम्बिनेशन है जो अपने आप को एक अच्छा कैरी भी कर सके और एक नाम कमा सके और अपने फादर के साथ प्राउडली खड़ी हो सके. बिग बॉस भी चल रहा है, क्या कहना चाहिए? कितना फॉलो कर रहे हैं इस साल के बिग बॉस? ज़्यादा फॉलो नहीं कर पा रही बट आई थिंक बिग बॉस एज यूजुअल इज़ फुल ऑफ स्पाइस और मेरे फेवरेट्स हर हफ्ते बदलते हैं. तो हाँ, क्या लगता है कौन होने वाला है टॉप 3? यार आई थिंक विकास गुप्ता बिकॉज ही इज़ प्लेइंग वेरी वेल और आई थिंक हफ्ते दर हफ्ते उनकी रियलिटी पता चल रही है, सिंप्लिसिटी पता चल रही है. तो आई एम वाउचिंग. आई थिंक विकास विल विन. हिना के काफी लोग अगेंस्ट है, तो आपका क्या कहना है हिना के बारे में? यार सबकी पर्सनालिटी अलग होती है. कई लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, शायद कई लोगों को स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ पसंद नहीं होती हैं बट आई थिंक एवरीबडी हैज़ अ पर्सनालिटी ऑफ देयर ओन एंड हिना इज़ प्लेइंग वेरी वेल. आई थिंक बहुत डिटरमाइंड है और वो यहाँ खेलने के लिए आई है और अच्छा खेल रही है. सो ऑल द बेस्ट टू हर. शिल्पा अगेन आई थिंक शी इज़ प्लेइंग वेरी वेल. बहुत नाइव है, सॉफ्ट है. आई थिंक बिग बॉस के घर के लिए स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है. आई थिंक शी इज़ हैविंग अ टफ टाइम बट गुड विशेस टू ऑल ऑफ देम. ऑलराइट, थैंक यू. Everyone seeks a perfect woman in their life, at least men do. All women aspire to be perfect. So I think the tagline says a lot for this event. Ladies who are being felicitated today should be very proud of themselves. It's a great initiative. It's a great gesture for women encouragement. I mean, we've passed that stage where we keep saying women need to be empowered. Now is the time to show it. Act on it. Like everyone always says, let's do the empowerment, let's do the environment. But this is what actually does it. You have to actually do it, not just by saying. So we've now come on a stage where we are doing things like this. So it is fantastic, it is lovely and encouraging. Men feel very happy that we're amongst a society that respects women in this manner. So it's good. I'm happy to be here. Are you looking forward to having? सबसे पहले तो आज की इवनिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? परफेक्ट वुमन. Yes. मेरे लिए परफेक्ट वुमन मेरे हिसाब से पैसा या फेम किसी को वो खिताब नहीं दे सकता. एक इंसान की हरकतें, एक इंसान की आदतें, जिस तरह से वो हर दूसरे अमीर गरीब या किसी भी इंसान से बात करे, वो उसे एक परफेक्ट इंसान बनाता है. और परफेक्ट इंसान को ऐसा नहीं बनता. बहुत प्रैक्टिस, बहुत पेशेंस, बहुत कंट्रोल चाहिए उसके लिए. तो जिन लोगों को आज ये अवार्ड मिल रहा है उनको बहुत ही प्राउड फील करना चाहिए, बहुत ही खुश फील करना चाहिए. हम मर्दों को बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम ऐसी सोसाइटी में जी रहे हैं जहाँ औरतों को ऐसे खिताब मिल रहे हैं और इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है. सो वी एनकरेज इट, वी रियली लाइक इट एंड उम्मीद करते हैं कि और भी बहुत सारे ऐसे फंक्शन होंगे. अवार्ड आपके लिए कितना मायने रखता है? पब्लिक का एप्रिसिएशन. यार मैं अभी टीवी में कुछ 7 सालों से काम कर रहा हूँ, 8 साल. मुझे कभी अवार्ड फंक्शन पे देखा नहीं होता. तो अवार्ड तो अच्छी बात है, लेकिन असली खुशी तो रात को अच्छी नींद तब आती है जब आप पूरे दिन में अच्छा काम करो. जब आपके बॉस या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर आपको बोले भाई आज अच्छा काम किया, तब जाके अच्छी नींद आती है. ये अवार्ड की खुशी कुछ टाइम के लिए होती है, फिर इट्स गुड. पीपल रिकग्नाइज द वर्क एंड दे अप्रिशिएट इट. बहुत अच्छी बात है, सबको अच्छा लगता है. सो बट इट्स नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ. और अच्छी बात है कि आप अच्छा रहना प्रैक्टिस करें और अच्छा काम करें और लोगों को खुश करें और लोग आपका काम अप्रिशिएट करें. अगर आप मुझे बाहर बोलोगे कि यार तूने बड़ी अच्छी एक्टिंग की, तो मुझे किसी भी अवार्ड से ज़्यादा खुशी होगी. इसके अलावा जैसे टेलीविजन में
आप 7 साल से काम कर रहे हैं, तो टेलीविजन के बहुत सारे लोग बिग बॉस में भी है, तो क्या कहना चाहेंगे? आपका फेवरेट कौन है और आप फॉलो करते हैं बिग बॉस? सिद्धू जी जब थे उसमें मैंने देखा था, वो मेरे फेवरेट थे। मुझे भी एक दो मौके मिले थे बिग बॉस में जाने के, लेकिन यार मैं ज़्यादा क्या कहूँ, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता। मैं कोने में जाके बैठ जाऊँगा, तो मैं उस तरीके में एंटरटेन नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं अपना हाथ उसमें डालता नहीं हूँ। आई एम ऑल्सो नॉट अ टीवी वॉचर। मैं ज़्यादा करके न्यूज़ और फिल्म्स देखता हूँ, तो मुझे फिल्म्स और न्यूज़ के बारे में ज़्यादा पता है। टीवी के हाँ, मैं एक्टिंग काम कर लेता हूँ टीवी में, ऐसे अच्छे नहीं होते, पर ज़्यादा देखता नहीं। So any upcoming project you would like to share with us? Yes, I just came back from America. I was invited there by this producer called Tony Mercedes. उन्होंने बहुत ही बड़े म्यूजिशियंस के साथ वहाँ पर काम किया है। मुझे उन्होंने हेमा सरदेसाई ने मुझे टीवी पर देखा। काफ़ी नामचीन सिंगर है, आप सब जानते होंगे हेमा सरदेसाई को। आवारा भवरे का गाना उन्होंने दिया। तो शी टोल्ड मी कि ऐसा ऐसा हो रहा है और अमेरिका में हम लोग म्यूजिक वीडियो शूट करें। Would you like to come and sing and act? I said 100% I would sing and act. तो मुझे गाड़ी में उन लोग ने गाते हुए रिकॉर्ड किया, थोड़ा सा वीडियो लिया, वहाँ मेरा ऑडिशन भेजा, सिलेक्ट हो गया, अमेरिका गया, गाना गा के आया हूँ, एक्टिंग करके आया हूँ म्यूजिक वीडियो में। इट्स कॉल्ड पावर ऑफ लव। हम लोग ने अभी यूट्यूब पे चढ़ाया है। अगर आप पावर ऑफ लव टाइप करेंगे और मेरा नाम मिशाल डाल देंगे तो आपको गाना मिल जाएगा। This is what I've done. 5%, 5% निकाल के किसी बूढ़ों और गरीब बच्चों को रास्ते पे खिला देना, देखना आपको कितनी खुशी मिलेगी उसमें। आपका बेस्ट न्यू ईयर होगा। That's it. Thank you. Thank you, sir. Thank you. मैडम नीचे आओ, नीचे आओ। I should say that a very very happy new year to all of you. नए साल की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज ब्राइट का जो एक ब्राइट्स अवार्ड इज हैपनिंग, इट इज़ a truly happening thing actually, because Mr. Yogesh himself is a very happening man. So इस नए साल के दौर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि नया साल खुशियों का एक दौर होता है, जश्न का दौर होता है, उमंगों और उम्मीदों का दौर होता है। बट इस उमंगों और उम्मीदों के अंदर वी शुड नॉट फॉरगेट वन थिंग, our responsibility as a citizen of this country and as a person living in this कर्म भूमि called Mumbai. तो हम लोग अपना जश्न मनाएं, खुशियाँ मनाएं और अपने जो जिम्मेदारियाँ हैं उन जिम्मेदारियों को निभाएं, being a truly good human being. मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि today is a time for the women empowerment. हम जितना अपने आप को महत्वपूर्ण समझते हैं, इंटेलिजेंट समझते हैं, मगर हमें ये भी मानना चाहिए कि इट इज़ अ टाइम फॉर द वीमेन एम्पावरमेंट एंड वी मस्ट सल्यूट टू द वीमेन एम्पावरमेंट. आवर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एंड अमित शाह जी ऑल्सो सेज दैट इन द ईयर टू कम इन 2018-19 वी हैव टू plunge forward but not alone with the women empowerment. So ये नया साल जो है खुशियों का साल है और women empowerment को हम बड़ी अच्छी तरह से माने. That's a great thing. I believe today they are giving me a lifetime achievement award, but I always say कि भाई लाइफ तो अभी शुरू होती है. I always strongly feel that when you see a new sunrise, that is the beginning of a new life. So although I'm honored from the Bright Award which I'm getting as a lifetime achievement award for this industry, for television, we are here in this industry since 1984-85 in television. My company Creative Eye Limited has created more than 9,000 hours of programming, but it's a humble achievement of one and all. It does not belong to me alone, Dheeraj Kumar, neither it belongs to my wife Judy Kochar, but it belongs to the team, it belongs to the people, and it belongs to the people of this nation, जिन्होंने आज तक इतना प्यार दिया है, इज्जत दी है. मैं इतना ही कहूँगा कि उनकी इज्जत और उनके प्यार को दिल दिमाग में रखते हुए may God bless them and let this journey, this humble journey should continue forward in the years to come. Thank you. ब्राइट अवार्ड क्या कहना चाहेंगे आज के अवार्ड के बारे में? आज के अवार्ड के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं एंड वी विश ऑल द कंटेस्टेंट्स ऑल द बेस्ट. ये जो परफेक्ट मिस इंडिया जो अवार्ड है, इसमें आई थिंक मोर देन योर ब्यूटी एंड मोर देन हाउ यू लुक, it depends on how you carry yourself, how your
प्लान फॉर न्यू ईयर? न्यू ईयर पार्टी और क्या? पार्टी से हमारे घर में पार्टीज ही तो होती है। यस, पार्टी करेंगे। घर पे पार्टी, स्कूल में पार्टी, हर जगह पार्टी। Any project you are working right now? I just finished working on a serial. It was for Star Plus Chandra Nandini, so that is just over. And a new movie is going to come 2018 में, so wish me luck for that. It's called Bhumi. It's an animation based movie for kids, so let's hope for the best. मेरा भी आएगा, वो एक सरप्राइज़ है और मैं रिवील नहीं कर सकता, तो थोड़ा वेट कीजिए आप, बस दुआ कीजिए अच्छा जाए। और मेरा 2018 में एक मूवी आएगी साहिब बीवी और गैंगस्टर 3, सो विश मी लक कि वो बहुत हिट जाए। शाम के बारे में क्या कहना चाहिए? आज की बहुत हसीन शाम है, जो लग रहा है मुझे कि यादगार शाम बनेगी। और इसी तरीके से जो परफेक्ट अवार्ड के रूप में हम लोग आज यहाँ पर हाजिर हुए हैं, और ये सिलसिला चलता है तो और मज़ा आएगा, और मुझे बहुत खुशी है इस अवार्ड की। तो आज क्या परफॉर्म करने वाले हैं स्टेज पे क्या? नहीं, मैं कोई परफॉर्म के लिए नहीं आया हूँ, मैं कोई परफॉर्म के लिए नहीं आया हूँ, बस मैं यहाँ पे आया हूँ सबको ब्लेसिंग देने के लिए, लास्ट क्रिसमस एंड न्यू ईयर की शुभकामनाएं सब लोगों को देने के लिए, आप लोगों से रूबरू मिलने के लिए। कल सलमान भाई का जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी भाई, भाई का कल बर्थडे है, मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है, और मैं कल उनके साथ में हूँ, बर्थडे मना रहा हूँ, और एक शाम भाई के नाम यादगार होगी कल। कोई गाना अगर डेडिकेट करना चाहेंगे? जल्दी आप भाई के साथ एक प्रोजेक्ट मेरा आ रहा है, वो उसका सॉन्ग आप जब सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे, बहुत एक धमाल सॉन्ग आ रहा है। थैंक यू सो मच। श्वेता जी, क्या कहना चाहेंगे आज के अवार्ड शो के बारे में, और पेजेंट भी है यहाँ पर, कितना एक्साइटेड है? ठीक है, इस अवार्ड फंक्शन को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और वो जाहिर है मेरे आउटफिट और मेरा जो गेटअप है उसे देखकर आप जान सकते हैं कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फंक्शन। मुझे मुर्तज़ा ने बताया था इस फंक्शन के बारे में, और अभी से काफ़ी अच्छा लाइमलाइट लग रहा है यहाँ पे, सितारों की गर्दिश छाई हुई है, उसमें मैंने भी एंट्री की है अभी। और कोई नॉमिनेशन में है आप यहाँ पर? जी, मेरा भी एक नॉमिनेशन है इसमें, अब देखते हैं वो किस कैटेगरी में है। ओके, न्यू ईयर्स के क्या प्लान है, कोई रेजोल्यूशन बनाया न्यू ईयर के लिए? न्यू ईयर्स के प्लान्स काफ़ी मतलब सोचा हुआ है कि काफ़ी अच्छा एक नए किरदार में आपके सामने आ सकूं, एंटरटेन कर सकूं आप सभी लोगों को, क्योंकि ये जो किरदार मैं ऑलरेडी कर रही हूँ ये इसको अभी 7 साल हो जाएंगे, तो थोड़ी सी बोरियत सी भी हो गई है, और मुझे लगता है आप लोगों को भी मुझे एक नए किरदार में देखना आप चाहते हैं, तो इसीलिए मैं एक वेट कर रही हूँ कि कोई अच्छा दूसरा कोई कैरेक्टर मिले जिसे मैं प्ले करके आप सबको एंटरटेन कर सकूँ। थैंक यू सो मच। मैं मेरे को यहाँ ही पूरी पीछे बस मैं पीछे ले लो। बस पीछे लिया करो सारे आपके नाम के साथ एक मिनट या मैम रोल एक मिनट बोलिए मैम। ससुराल सिमरका की तरफ से, परी भारद्वाज की तरफ से और श्वेता सिन्हा की तरफ से सभी व्यूअर्स को विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू मैम। ब्राइट जो है परफेक्ट ही है, ब्राइट परफेक्ट है, बहुत खुशी है। परफेक्ट वुमन की डेफिनेशन क्या है आपकी? बहुत मुश्किल है, मैं नहीं दे सकती हूँ, तो आप ही दे सकते हैं। मैं परफेक्ट मैन के बारे में कह सकती हूँ, परफेक्ट वुमेन के बारे में तो आप कहेंगे। यहाँ पर अवार्ड शो भी हो रहा है, तो अवार्ड कितना मायने रखता है खास करके आर्टिस्ट के लिए? देखिए, अवार्ड तो एक हौसला देता है, अवार्ड कुछ नहीं है। सबसे बड़ी अवार्ड तो ही होता है जब कोई गाना हम गाते हैं और पब्लिक उसको पसंद करते हैं और बहुत सराहते हैं, तब वो अवार्ड मेरे लिए सबसे बड़े अवार्ड है। और ये जो अवार्ड है ये देने से लगता है कि चलो मैंने कुछ अच्छा काम किया, कोई याद कर रहे हैं, कोई बस, और कुछ नहीं। आपने बाहुबली में जो गाना गाया था, अगर 2 लाइनें आप गुनगुना दें हमारी ऑडियंस को।
I'm very excited. I'm like, I just say thank you so much for calling me actually, because this is a very big event actually. So I just say all the best to everyone and God bless you. इसके अलावा यहाँ पर जो अवार्ड शो हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे और अवार्ड आपके लिए कितना मायने रखता है? सी अवार्ड इनफैक्ट सबके लिए बहुत मायने रखता है। वो एक आपके लिए भी बहुत मायने रखता होगा अवार्ड, और किसी आर्टिस्ट को अवार्ड मिलता है तो उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती है, क्योंकि वो आपकी मेहनत और आपने जो भी किया है उसकी वजह से आपको वो चीज़ मिलती है। तो इट्स वेरी बिग थिंग फॉर एवरीवन एक्चुअली। इस साल का बिग बॉस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्या कहना चाहिए, कितना फॉलो कर रहे हैं इस साल के बिग बॉस? सीरियसली इस साल का बिग बॉस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मैं एक भी एपिसोड मिस नहीं करती हूँ। बट आज का एपिसोड मैं मिस कर चुकी हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, बट मैं फिर भी वापस घर जाके फिर से देखूँगी। बट इट्स अमेजिंग एक्चुअली, बहुत अच्छा सब लोग खेल रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है देख के। सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है और टॉप 3 में कौन आने वाला है? मेरी फेवरेट जो है वो शिल्पा जी हैं, क्योंकि शिल्पा जी बहुत अच्छा खेल रही हैं, और जिस तरीके से वो इतने सालों से टेलीविज़न में काम कर रही हैं तो उस हिसाब से वो सब कुछ बैलेंस करके और पूरा प्लानिंग के साथ सारा चीज़ वो की जा रही है। तो इट्स वेरी गुड एक्चुअली। तो मेरे हिसाब से तो मैं हमेशा उनको ही वोट करती हूँ। मैं बोलती हूँ कि वही जीतनी चाहिए बिग बॉस, और आई डोंट थिंक सो कि उनके अलावा कोई और विनर हो सकता है। अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म के तो उसके बारे में अगर थोड़ा कुछ बताना चाहें आप? अभी सी यू नो व्हाट हैपन समटाइम, आपको बहुत सारे जगह से कॉल्स आते हैं, और समटाइम आप कुछ चीज़ें वर्कआउट होती है और समटाइम कुछ वर्कआउट नहीं होती है, राइट। सो जब तक कुछ नहीं हुआ है और अभी तक मुझे खुद नहीं पता कि अभी क्या होने वाला है, तब तक कहना बहुत ही मुश्किल है। बट आई एम जस्ट फिंगर क्रॉसिंग कि सब कुछ अच्छा हो, और अक्षय जी के साथ काम करना तो ड्रीम कम ट्रू वाली बात है। हर लड़कियां, हर इनफैक्ट जो भी आर्टिस्ट है आज के टाइम में, सब उनके साथ काम करना चाहती है, बिकॉज इज़ अ लाइक जीनियस एक्चुअली। मैं उनको एक गॉड की तरह मानती हूँ, वो एक भगवान है इंडस्ट्री में। सो ऐसा मौका मुझे मिले तो मैं तो अपने आप को सोचूंगी कि मैंने सब कुछ पा लिया है इनफैक्ट। नाउ डेज आई एम डूइंग वन शॉर्ट फिल्म जो बहुत जल्दी आप लोगों को पता चलेगा, एंड वेरी लाइक बहुत बोल्ड सब्जेक्ट पे ये चीज़ मैं कर रही हूँ, और इससे पहले मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट पे अब तक काम किया नहीं है। तो मेरा एकदम से अलग रूप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो इस अवार्ड शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? परफेक्ट मिस अचीवर्स अवार्ड कितना मतलब स्पेशल है, और आप यहाँ पे आइए, क्या कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स ये जो मैगज़ीन है ये बहुत फेमस है, हम सब जानते हैं। एंड मैं भी एक बार, आई थिंक 1-2 बार आई हैव जस्ट सीन द मैगज़ीन, सो आई क्वाइट enjoy reading this magazine। और ये जो परफेक्ट अचीवर्स अवार्ड है, ऑफ कोर्स यहाँ बहुत मैं देख रही हूँ, आई थिंक everyone has come here and it's really an honor to come and attend this award, and especially year ख़त्म हो रहा है, so एक अचीवमेंट हो आपके पास ईयर ख़त्म होने पे तो एक अलग सी खुशी होती है। अवार्ड आपके लिए कितना मायने रखता है? बेसिकली इट्स नॉट दैट कि आप अवार्ड ही आपको हर चीज़ के लिए यू कैन से कि लाइक अवार्ड मिला है मतलब मैंने अच्छा काम किया। इट्स नॉट नेसेसरी, बिकॉज सब अच्छा काम करते हैं, किसी को अवार्ड मिलता है किसी को नहीं मिलता है, बट दैट डजंट मीन कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो। व्यूअर्स हमें पसंद करते हैं एंड लोग हमें पसंद करते हैं, सो आई थिंक the love of the fans and the viewers is our main award। और basically award functions जो होते हैं वो सिर्फ एक just to give you that happiness and that motivation, so it's yeah, that's it। आपका शो फिर से आने वाला है नागिन, तो मतलब आप होंगे इस शो में या फिर क्या मतलब
मैंने पहले भी कहा है अबाउट नागिन 3 दैट आई एम नॉट कमिटेड टू नागिन 3 एज ऑफ नाउ, और ये मैं कई बार भी बोल चुकी हूँ, और अभी आपने पोस्ट पढ़ा भी होगा, सो आई एम नॉट येट कमिटेड टू नागिन 3। आजकल लोगों में बिग बॉस का बहुत ही ट्रेंड चल रहा है, तो आपका कौन सा फेमस है, कुछ शेयर करना चाहें तो? बिग बॉस फॉलो करती हूँ मैं, एंड आई रियली इंजॉय वॉचिंग इट। ऑफ कोर्स मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड विकास गुप्ता है शो में, सो आई सपोर्ट हिम एंड आई होप ही विन्स। क्या लगता है टॉप 3 कौन होने वाला है इस साल? टॉप 3 इस साल हो गए, आई होप कि विकास हो। विकास, आई थिंक शिल्पा शिंदे इज़ अगेन अनदर स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, एंड आई फील हीना भी हो सकती है टॉप 3 में। न्यू ईयर आ रहा है, आपको न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या रहेंगे? मैं रेजोल्यूशंस कभी बनाती नहीं हूँ, बिकॉज रेजोल्यूशंस आर मेंट टू बी ब्रोकन। आई ट्राई एंड यू नो, होता है ना कि इस साल मैं क्या अचीव करना चाहूँगी, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मैं यू नो 2017 में करना चाहती थी, वो एंड ऑफ द ईयर मैंने किया। आई डिड स्काई डाइविंग विच वाज माय ड्रीम। सो हर साल एक छोटा सा ड्रीम फुलफिल करना, ये मेरा एम रहता है। सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम गोना डू इन 2018। You're one of our most fittest icon of our age. So what's Thank your you. plan for 2018 to stay fit? सिर्फ 2018 ही क्यों, फिट तो हमें ज़िंदगी भर रहना है। सो आई थिंक एवरीवन शुड बी फिट, बिकॉज फिट हो तो आप हिट रहोगे, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। Okay, New Year wish for all of you. I would like to wish everyone, all the viewers, very, very, very happy and prosperous New Year.
Christmas in Poonam Pandey style. And New Year's also. है बहुत कुछ है कुछ आने वाला है बहुत जल्द. Yeah, that's something that's gonna come. Yes. New Year? क्या? You are becoming the fitness icon of our Bollywood industry. So what's your plan for fitness for 2018? Oh, of course to be fit because that is something everyone should do. I mean, आजकल की life, you know, हम जितने burgers खाते हैं, हम जितनी pizza खाते हैं, you know, हम लोग ऐसे हो जाते हैं. So you know, you gotta make sure कि we should take care of हम क्या खा रहे हैं, हम कितनी महान चीज़ों को हमारी पेट में डाल रहे हैं, ना, तो we gotta take care of that. So also Salman Khan का birthday है. और पूनम पांडे स्टाइल में आपने मैरी क्रिसमस कह दिया है, सलमान को कैसे बर्थडे विश करने वाले हैं? I mean, okay, ये actually बहुत अच्छा idea है. मैं कुछ इसमें सोचती हूँ. I gotta think something on this. Yeah. So had you watched Tiger Zinda, Salman's movie? Oh no, but I've heard so much interesting things about that film and amazing. I love that song. मैं मेरे 31st पे उसी song पे perform करी by the way. Swag से करेंगे सबका स्वागत. Oh yeah, I'm performing on that song. So well, we are seeing on Insta, but when we will see you on screen? I've just completed a Bollywood film. Shooting खत्म हो चुकी है. ज़्यादा नहीं बोल सकती when you're on that contract and all. Like I cannot speak much. But yeah, you will get the news in January 2018. Ma'am, one year wish for all the viewers. To all the viewers, Happy New Year in Poonam Pandey style. Thank you.
वो फर्क हुई है और जो टीम मुझे हुई और जो हमारे फेसेस है जो नया जोश लेके आए शिवांगी और मौसी नारायण साहब एंड आई विल बी जोश बहुत एंड योर एवरिंग में आपने बहुत अच्छा हमें अवार्ड दिया है इससे हमारा जोश और बढ़ेगा एंड थैंक यू फॉर दिस ऑनर थैंक यू सो मच एंड आई वुड लाइक देम टू स्पीक बिकॉज दे हैव गॉन ऑन द शो सो इफ यू डोंट हैव टू स्पीक thank you so much guys this is created this amazing epic called Ye Rishta Kya Kehlata Hai, a machine that has been working successfully since 9 years. Shivangi and I are mere nuts and bolts of that machine. It's been successfully working. A machine that works smoothly, I think मेरे ख्याल से अपने imperfections को अपनाना ही perfection है. There is no such thing as perfect. Also, it all depends on what is your idea of perfect. So for me, being imperfect is perfect, and accepting that is perfect. So for me, the real Miss India would be somebody who accepts all those negative and positive about her and stand courageous in front of the stage. Yeah. Do you value awards मान रखते हैं आपके लाइफ में? You know, honestly अब तक नहीं रखते थे, पर अब मुझे चाहिए यार बहुत सारे. So जैसे ही मैंने ऐसे चाहिए ऐसे सोचा तो ऐसे 2 अवार्ड्स आ गए. अब आते रहेंगे ऐसा लग रहा है लाइफ में ऐसा. You know, sometimes you have the knowing, and I think I feel that. Yeah. You're reviving yourself अलग-अलग प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं. कुछ प्रोजेक्ट्स काफी इंटरेस्टिंग है. क्या कहना चाहेंगे? कितना इंटरेस्टिंग फेज है लाइफ का आपके? बहुत इंटरेस्टिंग है. ये एक तरह की लग्जरी है जो मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे मिली कि मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी चॉइस के प्रोजेक्ट्स कर सकूँ. नहीं तो बहुत सारे एक्टर्स बेचारे नहीं कर पाते हैं for various reasons. And I would say that I'm blessed to be able to do that, to be able to stand on this platform that I can choose what I want to do and what I don't want to do. So yeah, I'm because of this whole you know, internet and this whole new medium. There's so many new different kind of projects that are being offered to me, that are being made in the market, and they're fantastic. I think if there was no online media, those projects would have never taken place. So either we were stuck on TV with the typical kind of television products, or we were stuck on films with the typical kind of films. So now this medium has opened up all those interesting things that really excite a person like me, an actor like me. Yeah, otherwise I get very bored very easily. You are quite beautiful as well as talented. तो आपको लगता है कि जो आप deserve करती थी आप, you should get that कुछ you have satisfaction with whatever you achieved? With thank you first of all. I still have a long career ahead, and it will always be till I decide to quit. So there's always a chance of being appreciated for what you think you deserve. Everybody thinks that they deserve the world, and I do too. And I know I will get it. I know I am getting it already. I'm moving towards that direction, and it's my time. No one can stop it. So
which project you are working on right now and want to disclose about the project? What is the project? There's a feature film that I'm really excited to talk about, but I'm not allowed yet. But in January, I'll be able to talk about that. It's one of my best works so far, and I just don't know how to show my gratitude towards that. Then there's I have my own production house now, Shama Sikandar Films, so that's a very interesting new thing that happened this year. We are making our first project. It's a series of 7 short films, and they are all inspired by my life, my real life incidents. It's called Ab Dil Ki Sun. Each chapter, I have learned in my life that if you want to become better, you have to introspect. There is no way. You have to look within. You will not find the answers outside. So each of my film is based on a feeling, and that takes you towards an introspecting question in the end that we ask people watching it, rather than giving a message, because I want the message to be of your own, not given by me or given by anybody else. I'm nobody to give you any message, but you have the right to choose your message. So yeah, that's something really interesting. Lastly, things are changing in industry also. Likewise, in Padmavati, Deepika have a price of 11 crores as compared to Ranveer and Shahid. She's deserving 11 crores. तो मैं कहना चाहेंगे कि कितना बड़ा डिफरेंस है ये कि फीमेल लीड को ज़्यादा मिल रहा है मेल लीड के। बहुत अच्छी बात है। I think जिसका रोल बड़ा हो उसे मिलना ही चाहिए, you know. और I don't believe कि मर्दों को कम मिलना चाहिए, औरतों को ज़्यादा मिलना चाहिए. I just believe कि हमें अपना हक चाहिए, जितना हम डिज़र्व करते हैं हमें उतना दीजिए. हमें औरत हैं करके हमें नीचे मत दबाइए, बिकॉज हम भी उतना ही काम करते हैं, हम भी उतना ही सर्व करते हैं इस दुनिया में. It's equal, both of us have equal part to play. So the discrimination that happens in the society because you're a woman, that is something that I don't agree, but I definitely don't want to put men down. I don't think that's the real kind of women empowerment, and the whole existence is moving towards this movement where people are realizing how much the women are contributing to the society, to lives, and I'm glad that they're appreciating and accepting the fact, and the results are out there. So it's a great change. Yeah. बात है आपके लिए कितना कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं? कॉन्फिडेंस था एक वेब सीरीज़ के अंदर गर्ल इन द सिटी के लिए, इसीलिए अवार्ड मिला है. तो मैं डिज्नी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मेरे डायरेक्टर का जिसका बहुत सर खा लिया था मैंने इस रोल को लेके. एक बाइपोलर एक बहुत सीरियस बीमारी है और उसके बारे में ये कहानी नहीं है, लेकिन उसमें एक एलिमेंट है. तो जितने भी लोग हैं जिनको बाइपोलर की प्रॉब्लम है, तो जितना मैंने रिसर्च किया मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसा टॉपिक उभर के ज़रूर आना चाहिए. और माई बेस्ट विशेज़ विद एवरीवन एंड ऑल गर्ल्स इन एवरी सिटी. तो आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी. थैंक यू सो मच. जी, शादी में ज़रूर आना स्पेशल है क्योंकि रत्ना सिन्हा जो मेरी मैंने एक फ़िल्म की थी जिद, तो उसमें एसोसिएट डायरेक्टर रही थी ये, तो उनका बहुत अच्छा हाथ था टू मेक मी लुक गुड, टू मेक माई परफॉर्मेंस कम आउट. और शादी में ज़रूर आना में भी एक छोटा सा रोल है, एक स्पेशल अपीयरेंस था, मगर इतनी ब्यूटीफुली उसने प्ले किया, एक टेक के अंदर सारी चीज़ें निकाल दी और द फिल्म हैज़ डन वेल. सो थैंक यू. एंड राज ब्रदर, आई लव यू यार. इतना अच्छा इंसान जो इतना इनसिक्योर कभी फील ना करे, दूसरे एक्टर को कंफर्टेबल फील कर पाए. कृति भी, थैंक यू गाइस, दिस इज़ फॉर यू. हक से कर रहा हूँ मैं ऑल्ट बालाजी एकता के लिए. एकता कपूर, यू आर फैबुलस. मेरा सेकंड इनिंग है एकता कपूर के साथ. पहली इनिंग थी जो क्रिकेट पे थी अजहर. सेकंड इनिंग है वेब सीरीज़ ऑल्ट बालाजी के लिए हक से. लिटिल वुमेन की कहानी है, कश्मीर की कहानी है. कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है एंड टू वॉइस आउट द वुमेन एंड व्हाट दे रियली वांट, व्हाट दे आर मेड ऑफ, उसकी कहानी. तो प्लीज़ उसको सपोर्ट कीजिए. थैंक यू.
एक्चुअली बिग बॉस 9 में मैं थी ओनली फॉर 2 days एक्चुअली. इट्स नॉट लाइक कि वाइल्ड कार्ड एंट्री, ओनली फॉर 2 days बिकॉज आई हैव अ वन लाइक दे गिव मी वन टास्क और वो मैं करने के लिए गई थी बिग बॉस 9 में. और उस टाइम का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था. एंड अभी जो मैं बिग बॉस को फॉलो कर रही हूँ वो बहुत ही डिफरेंट है. और मुझे लगता है कि शायद मैं घर में होती तो आई डोंट थिंक सो कि मैं रह पाती बिकॉज सब लोग बहुत अलग हैं और एवरीवन वेरी शार्प और उनको पता है एग्जैक्टली क्या करना है क्या नहीं करना है. सो मेक श्योर कि मैं नेक्स्ट ईयर जाऊँ. तो अभी जो वो लोग प्लानिंग करके और वो सब जो चीज़ें कर रहे हैं वो सब चीज़ों से मैं सीख के और नेक्स्ट ईयर के लिए मे बी मैं मतलब पूरी तरीके से प्रिपेयर होके जा सकती हूँ. आई डोंट नो, मैंने भी अभी सुना है कि मैं अक्षय जी के साथ फिल्म कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी पता नहीं था. एंड समटाइम यू नो व्हाट हैपन कि आप बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होती है, बहुत सारी जगह आप जाते हैं, बहुत लोग आपको कॉल्स करते हैं एज अ लाइक किसी काम के लिए. कभी कभी वर्कआउट होता है, कभी कभी वर्कआउट नहीं होता है. तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि हाँ मैं उनके साथ फिल्म कर रही हूँ. बट आई लव टू वर्क विद हिम बिकॉज ही इज़ अ लाइक जीनियस एक्चुअली. एक तरीके से वो मतलब फिल्म इंडस्ट्री में उनको आप भगवान के मतलब मैं उनको भगवान की तरह ही वो करती हूँ. और ऐसा चांस मुझे मिलता है तो बाय नॉट कि मैं क्यों ना करूँ. और हर लड़की मतलब हर कोई इंसान चाहेगा कि उनके साथ काम करना. सो जस्ट फिंगर क्रॉस कि ऐसा कुछ होता है तो इट्स वेरी गुड लाइक कि ये नए साल में ये नया साल जाते जाते मुझे कुछ बड़ा सा चीज़ देके जा रहे हैं. तो इट्स आई एम जस्ट वेटिंग. बट अभी कहना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एक्चुअली क्योंकि मैंने वही बोला आपको कि होना नहीं होना आई डोंट नो. क्योंकि कॉल्स तो आपको बहुत सारी जगह से आते हैं बट समटाइम होता है समटाइम नहीं होता है. सो लेट्स सी, जस्ट फिंगर क्रॉस. सो आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे ये अवार्ड मिला आज. जैसे कि मैंने कहा जर्नी वॉज नॉट ईजी. पापा कहते हैं हमेशा कि नो मैटर वेयर यू आर फ्रॉम योर ड्रीम्स आर वैलिड. जितनी बार गिरो उतनी बार उठो. सो बहुत कुछ अचीव करना बाकी है. बस दुआ करती हूँ कि कभी भी फॉर एनी डैम रीज़न आई डोंट वांट टू स्टॉप. मुझे बस बढ़ना है और आगे बढ़ना है. ऐसे अवार्ड्स मिलके यू नो हमें यंगस्टर्स को काफ़ी इट्स लाइक अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन. यू नो जब ये अवार्ड्स मिलते हैं तो आपको अच्छा परफॉर्म करने का यू नो यू फील लाइक डूइंग इट मोर. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट. 2018 आने वाला क्या प्लानिंग है, क्या रिजल्ट? 2018 में एक तो तहलका मचाना है काफ़ी सारा. खूब सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करने हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आई वांट टू बी हैप्पी एंड अचीव ऑल जो भी मेरे बकेट लिस्ट पर है. आई हैव टू अचीव ऑल ऑफ दैट. जी. बॉलीवुड इंडस्ट्री आई लव रणवीर सिंह, आई लव आलिया भट्ट. हर एक को अगर आप देखोगे तो एवरीबडी हैज गॉट डिफरेंट oh my god, there he is, and Mr. Karanveer Sharma. मेरा नाम नहीं लिया. Huh? But I know she loves me. I love you. I love this guy. And I'm so glad that I've worked with you. And I really want to work with you. I really want to work with the younger generation. Mr. Karanveer, Mr. Rajkumar, Mr. Ranveer Singh, everyone. And she's a fabulous actor. ये आपकी wife है तो I'm gonna scoot. Careful. So yeah. Okay, so any upcoming project? I so want to tell you guys about my upcoming projects. लेकिन मुझे थोड़ी टाइम के लिए zip करना पड़ रहा है. लेकिन January first week I promise there's a big surprise coming up. और लव सोनिया भी बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है जिसकी रिलीज़ डेट भी बहुत जल्दी अनाउंस होगी. सो आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड एंड रियली होपिंग कि वो बहुत बड़ा हो. ओके, इस साल न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो था वो कंप्लीट कर लिया. आई एम हाइड्रोफोबिक तो मैंने स्विमिंग सीख ली है. आई नो हाउ टू ड्राइव, आई नो हाउ टू स्विम एंड ऑल द स्ट्रोक्स. नेक्स्ट ईयर रेजोल्यूशन जो मेरी सबसे पहले बकेट लिस्ट पर है दैट आई वांट टू लर्न हाउ टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट. सो उसके लिए मैं सबसे पहले मैं रिसर्च कर रही हूँ कि हाउ वेयर एंड व्हेन आई कैन स्टार्ट फ्लाइंग एन एयरक्राफ्ट. सो दैट इज़ नंबर 1. So 2018, I want to be ripped. I want to be like
जैकलिन फर्नांडिस इज़ माई फिटनेस इंस्पिरेशन। मैं हमेशा उनके इंस्टाग्राम या उसके सोशल मीडिया साइट्स पर उनके सारे पोस्ट देखती हूँ। इट्स सो इंस्पायरिंग दैट नो मैटर कितने भी लेट आपका पैकअप हुआ हो, आप सुबह उठकर यू फील लाइक गोइंग to the gym, and I think I have few muscles and I'm really liking it. I'm liking the new me. It makes me happy. Okay, New Year wish for all the viewers. Okay, so Happy New Year to all the viewers. Stay blessed and I love you all. Thank you. Thank you.